सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 21 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। पहले पेज पे हमारे सामने बॉम्बे हाई कोर्ट से एक खबर है। In a setback to center, the Bombay High Court Friday struck down as unconstitutional the amended IT rules that empower the government to identify fake news on social media platforms through a fact check unit, following a split verdict on pleas challenging the amended rules by a two-judge division bench. On Jan 31, a third judge, Justice Atul S. Chandurkar, gave the deciding opinion on the matter and held that the rule was ultra vires और beyond powers of the IT Act. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के इस पॉइंट को अब हटाने का बात करी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया है जिसके आधार पर सरकार एक फैक्ट चेक यूनिट इस्टेब्लिश करने वाली थी। फैक्ट चेक यूनिट के खिलाफ कुणाल कामरा जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने भी बहुत पहले से एक मुहिम चला रखी थी। आगे जानेंगे इसके बारे में, आगे आर्टिकल्स उसको लेके कवर करे हुए हैं। इसके अलावा कई खबरों के बीच हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से खबर है। कोलिजियम नॉट सर्च पैनल गिव रिस्पेक्ट रिपोर्ट्स ऑन स्टेटस ऑफ पेंडिंग नेम्स। कोलिजियम नॉट अ सर्च पैनल give report on status of pending names, Supreme Court tells government. Underlining that the Collegium is not a search committee, the Supreme Court on Friday asked Attorney General R. Venkatramani to submit a report on the status of the names that were reiterated for appointment as judges but were yet to be cleared by the center. तो ये कुछ ना कुछ रस्साकशी चलती रहती है केंद्र और कोर्ट के बीच में। आगे बढ़ेंगे, इस खबर को जरा और जानने का प्रयास करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट वाली, जस्टिस चंद्रकार एग्रीड विद द ओपिनियन ऑफ जस्टिस गौतम एस पाटिल। ये असल में हम बात कर रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की, हु वाज अ पार्ट ऑफ डिवीजन बेंच दैट डिलीवर्ड द स्प्लिट वर्डिक्ट अर्लियर एंड हेल्ड दैट द अमेंडमेंट ऑफ IT रूल्स 2023 थ्रू रूल 3(1)BV वाज अ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। तो कौन सा रूल था? रूल 3(1)BV, मतलब सबसेक्शन BV was violated of Article 14 and 19, 1A, 19, 1G. Article 14 refers to equality before law and provisions are referred under Article 19 pertaining to right to freedom of speech and expression. Justice Chandurkar held that the expressions fake, false or misleading are vague and overbroad and that the test of proportionality is not satisfied. जो क्लासिफिकेशन नए नियम में करने वाली थी गवर्नमेंट, फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़ या मिसलीडिंग, ये टोटली वेग है। आप कैसे कह सकते हो किसी कोई फेक या फॉल्स या वेग है? Impugned rule as amended by struck down. All the petitions will be placed before the division bench to be decided. The judge held that कि जितनी पिटीशन इसको लेकर हैं उनको सुना जाएगा एक और बार और इस नियम को हटा दिया जाए। According to IT rules 2023, content marked by the FCU as fake or misleading will have to be taken down by online intermediaries if they wish to retain their safe harbor. और इसमें फैक्ट चेक यूनिट अगर किसी कंटेंट को बोल देती है कि वे क्या मिसलीडिंग है, तो जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज़ हैं, ऑनलाइन इंटरमीडियरीज़ क्या, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, तो उनको हटाना पड़ेगा। However, Justice Chandurkar draws the view of Justice Patel that under the right to freedom of speech and expression, there is no further right to truth. He noted that it is also not a responsibility of the state to ensure that citizens were entitled only to information, but was not fake or misleading as identified by the FCU. तो इसको लेके यहाँ पे हमारे सामने एक और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करते हुए कोर्ट सामने आया है। जैसे चंद्रकार रूल दैट सेंटर्स क्लेम द डिसीजन गिवन बाय द FCU कैन बी चैलेंज्ड बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एडिक्वेट सेफगार्ड। The judge said the impugned rule cannot be saved by reading it down or by making any concession of limiting its operation. Justice Chandurkar, while agreeing with the Justice Patel, noted that the impugned rule resulted in a chilling effect for the intermediary due to threat of losing safe harbor, therefore should be rendered invalid and was liable to be struck down. तो यहाँ पे एक और फ्रीडम एक्सप्रेशन को लेके एक पॉजिटिव न्यूज़ है और सरकार का एक और जो प्रयास था टू लेबल न्यूज़ एज फेक, मिसलीडिंग और अंडर एनी अदर फर्दर कैटेगरी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि भैया आप ऐसे काम मत करिए। ऐसी और कोर्ट्स को लेके आज आर्टिकल ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को। एक आर्टिकल यहाँ पे फ्रॉड बाय एडवोकेट्स टू इम्प्लीकेट विटनेस से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर CBI प्रोब।
असल में कुछ अधिवक्ता वकील होते हैं जो गलत तरीके से कुछ केसेस में विटनेस को इम्प्लिकेट करते हैं, तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस करा, कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और इसको बहुत ही निंदनीय हरकत होती है ये। फिर हम आगे बढ़ेंगे कोर्ट से आगे जाके हमारे आर्टिकल्स की ओर, और आज के आर्टिकल्स हैं, पहला आपका रिजेक्ट है। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड वेन एवर गवर्नमेंट्स लूज पब्लिक ट्रस्ट, वन नेशन वन इलेक्शन अंडरमाइंस विल ऑफ वी द पीपल। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है। द यूनियन कैबिनेट वुड क्लियर द प्लान फॉर वन नेशन वन इलेक्शन हैविंग एक्सेप्टेड द रामनाथ कोविंद कमेटी रिपोर्ट्स unanimous recommendation was foretold. Looking back, it has been on the cards ever since Prime Minister Narendra Modi advocated one nation, one election in his Independence Day speech from the ramparts of Red Fort this August 15. But the ring of grim inevitably gathered by this contentious proposal that presumes to rearrange the country's electoral and federal systems goes back further. इसका इतिहास अपने आप में रहा है। फिलहाल इसमें विरोध भी ऐसा कई बार हो रहा है कि ऐसा करके आप एक बार में निपटा नहीं सकते देश के चुनावों को, है ना। यू शुड एट लीस्ट इंश्योर दैट नोबडी इज वोटिंग राइट इज इन्फ्लुएंस्ड अंडर प्रेशर ऑफ इलेक्शन नॉट कमिंग ऑन एनी फर्दर डेट. The stated mandate of the committee was to find ways to implement the proposal certified as being in national interest or not to ask why. Now, the committee has done what it set out to do, arguing from the conclusion back to the premise, and the cabinet has put its stamp on it. The opposition in a stronger position after the general election verdict must not miss the opportunity that is still available to it. The one nation one election proposal requires a special majority in parliament, and its second phase also the ratification of state legislatures. This proposal must not be allowed to go through because it makes the will of people and their representatives subservient to a fixed calendar imposed in the name of cutting cost and increasing administrative convenience. Specious arguments that don't stand any rigorous test of evidence. अब इसमें यही पॉइंट निकल के आ रहा है कि अगर आप ऐसे ना एक बिल्कुल कह देंगे, देखो देखो अगर अभी चुन लिया तो ही ठीक है, बाद में नहीं चुनना है आपको किसी को, तो इससे जो किसी का वोटिंग का अधिकार है वो थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा ना फिर यार। अभी एक जो पॉलिटिकल पॉइंट निकल के इसमें ये आ रहा है कि इसमें होता क्या है कि सरकार एक बार मोमेंटम क्रिएट कर लेती है एक, ठीक है, मगर जब ब्रेक इलेक्शन होते हैं, ब्रेक इलेक्शन ऐसे कैसे करके, कभी निकाय चुनाव कभी कोई चुनाव, तो सरकार को हर बार उतनी मेहनत करनी पड़ती है। ये एक आर्टिकल में था, मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। उसमें कभी कभी क्या होता है, सरकार कुछ जगह जीत जाती है, फिर कोई कारण से दूसरी जगह हार जाती है, ठीक है। इसके पीछे जो पॉलिटिकल पॉइंट निकल के ये आ रहा है कि अब सरकार एक मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और फिर एक ही तलवार से पूरी धार मार देगी, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इसमें जो बात हो रही है कि एक्सपेंडिचर कन्वीनियंस होगा और लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस होगा, तो देखिए सरकार वैसे ही करोड़ों अरबों रुपए तो खर्च कर ही देती है, ठीक है। एड्स का खर्चा देखें आप तो पता नहीं कितने हज़ार करोड़ चला जाता है, ठीक है। तो अब बजट कन्वीनियंस तो बात है ही नहीं, ठीक है, वो तो कोई बात ही नहीं है। मैटर कुछ और है, वही इस आर्टिकल ने हमारे सामने रखने की कोशिश करी है। नुकसान इसमें वोटर का हो जाएगा। वोटर का नुकसान क्या होगा कि जहाँ उससे पहले कम से कम मौका मिल जाता था कि चलो कोई बात नहीं, लोकल चुनाव में अलग ओपिनियन है, नेशनल चुनाव में अलग ओपिनियन है, स्टेट चुनाव में अलग ओपिनियन है, ऐसे में वो अपना माइंड चेंज, सोच पे विचार करने में सक्षम ज़्यादा था, ठीक है। और रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, तो सबसे बड़ा आरोप खुद एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, उसमें मेंशन ये था कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन ही इम्प्लीमेंट करना है तो क्यों ना अभी से उसको प्रैक्टिस में ले लिया जाए। अभी आपने हरियाणा फिर जम्मू कश्मीर का चुनाव कराया, तो अभी हैंड टू हैंड हम महाराष्ट्र का भी करा देते हैं। इफ़ यू आर प्रपोजिंग, ठीक है, आई एम जस्ट स्पीकिंग व्हाट द अदर आर्टिकल्स आर सेइंग, ठीक है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का पॉइंट है गवर्नमेंट का, तो क्यों ना इसे प्रैक्टिस पहले लें, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच,
तो क्यों ना अभी से आप उसे इम्प्लीमेंट कर दें। आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर आप करा ही रहे हैं, साथ में महाराष्ट्र करा देते, मगर आपने महाराष्ट्र क्यों नहीं कराया, जिसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो जब मात्र 3 स्टेट्स के चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन को चिंता हो गई कि पॉसिबल नहीं है, कई कारण हैं, तो हाउ कैन इलेक्शन कमीशन इंश्योर दैट ऑन दी वन गो वन नेशन वन इलेक्शन विल बी कमेंस्ड। ठीक है, these are various aspects of this decision which are coming up in various articles I have gone through. Okay, and the ultimate loser will be the voter, because in certain points voter gets time to think that okay, I have to rethink my decision regarding the upcoming election, which will be lost once there is a single one way election, one nation one election. तो ये बहुत अलग एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस डिसीजन को लेकर आ रहे हैं, तो आप भी समझने का प्रयास करिएगा हर साल में। इन अ डेमोक्रेसी एज डाइवर्स एज इंडिया, द सूनर द वन नेशन वन इलेक्शन इज गिवन अप फॉर डेड, द बेटर इट गोज अगेंस्ट द फाउंडिंग विजन ऑफ द नेशन of a parliamentary and a federal system, not one that is presidential and unitary. और वैसे भी हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये तो हमारी खासियत है, चुनाव की खासियत ही यही है कि समय समय पे वोटर को मौका मिलता रहता है अपना फैसला सोचने को लेके। हम कोई प्रेसिडेंशियल या फिर यूनिटरी नेशन नहीं है, ठीक है, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर पे जीते हैं, सही समय आने पे चुनाव होते रहेंगे। और वैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा बढ़िया काम कर लेता है सामान्य दिनों में, तो कोई बात नहीं, एक इलेक्शन का लोड ही ले ले। To frame these complexities in terms of cost cutting and convenience is doing disservice to the constitutional spirit. वही बात है, जो भी कॉस्ट कटिंग की बात कह रहे हैं लोग कि इससे पैसा बचेगा, एक सीट पे 100 करोड़ खर्च होता है इलेक्शन कराने में, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें हैं, तो भैया सीधे तौर पे वी कैन आस्क दोज पीपल दैट when government is spending money on other nonsense things, okay, advertisements, big meetings, conferences, 5-star hotel conclaves, summits, गवर्नमेंट भी करा रही है ना, सेमीकंडक्टर समिट वगैरह दुनिया भर का। So please don't argue that cost cutting will be effective. Look, we have to have both views on this topic, right? Moving further, a widening war, you will leave to it. लेबनान हिजबुल्लाह भी चल रहा है, तो वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये तब ज़रूरी हो जाएगा जब आपका ये या तो कंक्लूड होने लगे या फिर इसका कोई इम्पैक्ट डायरेक्टली इंडिया पे पड़े। जो आर्टिकल अच्छा था, मैंने इसका अध्ययन करा था, डायबिटीज़ और कई मुद्दों पे सर्च करा, बातें करी हैं इन्होंने हेल्थ वगैरह पे, but not that crucial for the exam point of view. How Starlink satellites are binding astronomers. Elon Musk's Starlink satellites are impeding the work of astronomers. A study published on Wednesday in the journal Astronomy and Astrophysics found currently the Starlink constellation comprises more than 6,300 working satellites orbiting Earth at an altitude of around 550 kilometers. These satellites deliver high-speed internet to places which otherwise would not have access to it. साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि स्टारलिंक सैटेलाइट इतनी एफिशिएंट है कि आप इसे, इसका जो रिसीवर होता है, बहुत ही छोटा सा डिवाइस होता है, आप कहीं ले जाइए, जंगलों में ले जाइए, रेगिस्तान में ले जाइए, वहाँ पे आपको इंटरनेट मिल जाएगा। Blinded by light, radio astronomy is a branch of astronomy that studies celestial objects at radio frequencies.
unlike optical telescopes that detect visible light. Radio telescopes are designed to detect radio waves, have higher wavelength and low frequencies. But just like bright visible light can blind the observer, like the bright headlight of an approaching car, the same can also happen at radio frequencies. This is essential why radio noise is a problem. For radio astronomers, observing while a satellite in its field of view is like trying to see the faintest star visible to the naked eye next to a full moon. बहुत सही बात कही है। बेंजामिन फ्रिंकल कहते हैं, वैज्ञानिक हैं, when we say blinded, it means our eye collects too much light for you to see anything. You are getting saturated. This is exactly what happens with our radio telescopes. मतलब कि अब स्टारलिंक सैटेलाइट भी बहुत एस्ट्रोनॉमी में रेवोल्यूशन ला रही है, ठीक है। Moreover, as launching satellites becomes cheaper, some estimate that as many as 1 lakh satellites could be orbiting on the Earth by 2030. The number was pegged at 11,330 in June 23 by the UN OSA, United Nations Office for Outer Space. लगभग 11,000 सैटेलाइट इस समय जून 23 तक आपके आसमान में स्पेस में तैर रही हैं। अगला आर्टिकल है न्यू वाइट रेवोल्यूशन where India stands where it aims to be. Operation Flood, launched in 1970, ushered in the White Revolution and transformed the dairy sector in India. On Thursday, Union Home and Corporation Minister Amit Shah announced plans for White Revolution 2.0. What is the big picture currently in India's dairy sector and what is the objective? क्या है इसमें अब नया White Revolution 2.0 कैसे क्रांति लाएगा? Dairy cooperatives procured 660 lakh kg of milk per day in 23-24. The government wants to increase this to 1007 lakh kilogram per day by 2029. मतलब इसमें डेयरी जो आपकी इस समय आपका ट्रिपल डिजिट पे प्रोक्योरमेंट कर रही है मिल्क का पर डे। गवर्नमेंट का प्रयास है कि 2028 से 2019 तक ये 4 डिजिट पे पहुंच जाए। White Revolution 2.0 will increase milk procurement of dairy cooperatives by 50% over the next 5 years by providing मार्केट एक्सेस टू डेयरी फार्मर्स इन अनकवर्ड एरियाज। और ये गवर्नमेंट कैसे पॉसिबल कर पाएगी? मार्केट एक्सेस दे पाए रिमोटेस्ट टू रिमोटेस्ट एरियाज को बिना किसी दिक्कत के। दिस ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। स्कोप क्या है एक्सपेंशन का? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के एक अधिकारियों के अनुसार द रेगुलेटर ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री इन इंडिया डेयरी कोऑपरेटिव्स ऑपरेट इन अराउंड 70% ऑफ द कंट्री डिस्ट्रिक्ट्स। और लगभग 70% कंट्री डिस्ट्रिक्ट्स में आपका डेयरी कोऑपरेटिव्स ऑपरेट करती हैं, जो कि सही बात है। देयर अबाउट 1.7 लाख डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और 1.7 लाख हैं आपकी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये भी सही बात है। सोसाइटी विच कवर अराउंड 2 लाख विलेजेस, और लगभग 2 लाख विलेज कवर करती हैं सोसाइटीज़ आपकी। एंड 22% ऑफ प्रोड्यूसर हाउस होल्ड्स। दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ procure about 10% of the country's milk production and 16% of the marketable surplus. These cooperative societies procure about 10% of the country's milk production and 16% of the marketable surplus. In states of Gujarat, Kerala and Sikkim and the Union Territory of Puducherry, more than 70% of villages are covered by dairy cooperatives. मतलब कि इस समय नेटवर्क इनका इतना ज़्यादा है कि अगर हम इन्हें और बेहतर कर देंगे तो हमें एक तो रोज़गार के अवसर मिलेंगे दूसरी बात हमारा जो डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर है, मिल्क प्रोडक्शन सेक्टर है, ये और बेहतर होगा। कवरेज फंडिंग अब कैसे इसका हो पाएगा पॉसिबल? फंडिंग कहाँ से लाएंगे? कवरेज कितने ग्रामीण क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं? NDDB ने कहा है कि 56,000 नए 56,000 new multi-purpose dairy cooperative societies over the next 5 years and to strengthen 46,000 existing villages level DCS. The new DCS will be established in Uttar Pradesh. In Feb 23, NDDB launched a rupees 3.8 crore pilot project to set up dairy cooperatives in uncovered ग्राम पंचायत। और 2023 फेब में भी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 3.8 करोड़ का प्रोजेक्ट इंदौर, चिकमंगलूर, कर्नाटका वगैरह में इस्टेब्लिश करने के लिए चालू करा था। आगे बढ़ते हुए द बल्क ऑफ फंडिंग फॉर वाइट रेवोल्यूशन 2.0 विल कम थ्रू
NPDD नेशनल प्रोग्राम फॉर डिजिटल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये सब विस्तार का पैसा आएगा। Sources in the Ministry of Corporations said targets for White Revolution 2.0 have been subsumed under the proposed scheme, the details of which are currently being finalized. A draft note has been circulated for approval from the Expenditure Finance Committee. और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन वगैरह से देख रही है। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास इसका एक ड्राफ्ट नोट भेज भी दिया गया है, जहाँ पे वो बैठ के विचार विमर्श कर सकते हैं। अब बात करें चलिए भारत के मिल्क सिनेरियो के बारे में। तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स टॉप मिल्क प्रोड्यूसर विद प्रोडक्शन हैविंग रीच 23.58 million tons ड्यूरिंग 2023 इन 1951-52, मतलब कि हम लगभग 230.58 मिलियन टन का प्रोडक्शन तक पार कर चुके थे 22-23 तक। और वहीं पे 1951 में अगर हम बात करें तो 1951 में हम सिर्फ और सिर्फ 17 मिलियन टन 2 डिजिट प्रोडक्शन करते थे। और अगर हम 22-23 की बात करें तो हम ट्रिपल डिजिट प्रोडक्शन कर रहे हैं 230। ये है मिल्क सेक्टर का ग्रोथ भारत में। देख रहे हैं आप, आज़ादी के टाइम 51-52 और वर्तमान 22-23 कितना बड़ा उछाल आया है। इसलिए इस सेक्टर को हमें टैप करने की ज़रूरत है। 17 से 230 हमने टच कर लिया है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसमें और क्या क्या बातें करी गई हैं। As per the basic annual animal husbandry statistic BAHS, the top 5 milk production states are UP। अच्छा, अब क्रोनोलॉजी में परीक्षा में पूछ लेता है कि मिल्क प्रोडक्शन स्टेट्स के बारे में बताओ। तो यूपी है आपका, जो कि 15% अप्रॉक्सीमेटली उत्पादन करता है। फिर राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर आपका गुजरात है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है और वगैरह वगैरह, which together contributes to 53.08% of country's total milk production. Together 53.08% of total milk production contribute करते हैं। Almost 31.94% total milk production comes from indigenous buffaloes और 31.94। ये वाला आर्टिकल दोस्तों बहुत ज़रूरी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मिलेगा नहीं आपको, पता है, ऐसे ही डेटा होता है, ढूंढते रह जाते हैं, बाद में नहीं मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा, मेंस तक काम आएगा, ये मुख्य परीक्षा तक काम आने वाला है। Almost 31.94% total milk production comes from indigenous buffaloes, followed by 29.81% from the crossbred cattle और वगैरह वगैरह। तो बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, कई अच्छे पहलुओं पर बात करी है। About 63% total milk production comes to market, the remaining is kept by producers for their own consumption। तो अगर मान लीजिए कि 100% बन रहा है तो 63% आपका बाज़ार में आता है और बाकी बचा जो डेयरी वाले होते हैं ना, डेयरी वाले वो लोग भाई लोग हमारे अपने पास रख लेते हैं। अब उससे क्या करते हैं, उससे मतलब अन्य प्रोडक्ट्स बनाते हैं, थोड़ा बहुत अपने खुद के कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चीज़, दही, घी वगैरह, वही आपका चला जाता है एफएमसीजी वगैरह के पास वगैरह वगैरह, और ये अपना डायरेक्टली आपका मार्केट पे आता है, ठीक है। मतलब ये भी ऑब्वियसली यूज़ होता है, मगर ये वाला डायरेक्टली आपका डेयरी यूज़ में आता है, जो बाकी बचा हुआ आपका है, ठीक है ना, बराबर। ये आर्टिकल बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया आर्टिकल। ऐसे आर्टिकल आपको संभाल के रखने पड़ते हैं, बहुत संभाल के। ये हाईकोर्ट के फैक्ट चेक यूनिट को लेकर मैंने आपको बता ही दिया, डिटेल में नहीं जाऊँगा बार बार इसमें, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने शॉर्ट में बता दिया है, इसमें पूरी बात लिखी हुई है, वैसी पूरी बात तो पढ़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये तो एक क्विक एनालिसिस है। क्विक एनालिसिस में हम आपको थोड़ा सा ही बता पाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए इकोनॉमिक्स की खबर है, FATF रिपोर्ट ऑन इंडिया एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। असल में FATF ने ये कह रखा है
कि भारत बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आपको मैं आइडिया दूँ करती क्या है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, ये इसका काम होता है कि पूरी दुनिया में टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, इन सब पे जो देश काम कर रहे हो, इन पे नज़र रखना, इन पे पेनल्टी लगाना, सैंक्शन करना, एफएटीएफ, ठीक है ना। ये अपनी ग्रे लिस्ट भी जारी करता है। ग्रे लिस्ट में अगर किसी देश का नाम आ गया, जैसे पाकिस्तान है, तो मतलब अन्य देशों के लिए ना वो हो जाता है, एक वार्निंग हो जाता है कि आप देख लो, आप इसके साथ आपके साथ कारोबार करना चाह रहे हो, ये ग्रे लिस्ट में इसका नाम आ गया है, तो ध्यान रखना कि ये जितना भी कमाएगा या काम करेगा, ये आपका मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग वगैरह में फंडिंग भी करेगा इसके लेके। एफएटीएफ बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कई सैंक्शंस भी लगा देता है। फिर आपके साथ क्या होता है, आपके देश के साथ अन्य देश टाई अप वगैरह नहीं करते हैं। तो एफएटीएफ इस काम के अलावा भी देशों को रेटिंग वगैरह देता है, और रेटिंग क्या देता है, मतलब कि उनका एक रिपोर्ट देता है। तो उसने भारत को लेके बहुत पहले कहा भी था कि भारत अच्छा काम कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत ही स्ट्रिक्टली आपका कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जिस समय आप देखिए लगातार अरेस्ट हो रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में बड़े नेताओं के। हालांकि एफएटीएफ ने बाद में ये भी कहा है कि अभी तो हालांकि कंट्री को जनरल फॉलोअप कैटेगरी में रखा हुआ है, रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में, रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में रखा हुआ है। एफएटीएफ ने ये कहा कि ठीक है, अब आप लोग अरेस्ट कर रहे हैं वो ठीक है, मगर ज़रा प्रोसिक्यूशन भी करिए ना। पहले एफएटीएफ ने हमारी सराहना करी थी कि भारत में बहुत ही अच्छे से मनी लॉन्ड्रिंग को सीरियसली लिया जा रहा है, गवर्नमेंट लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल रही है। मगर एफएटीएफ ने ये भी कहा है कि जेल में डाल रही है, मगर वो लोग बाहर निकल के आ जा रहे हैं, मतलब कि प्रोसिक्यूशन सही नहीं है। तो एफएटीएफ ने ये कहा है कि भैया अपनी प्रोसिक्यूशन भी सही करिए आप। आपके मतलब प्रोसिक्यूशन सही कैसे होता है, ठोस सबूत लाइए, उनको जेल में भेजिए, उनके खिलाफ मुकदमा अच्छे तरीके से चलाइए, और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा सुनाइए। ये भी एफएटीएफ ने कह रखा है। हालांकि एफएटीएफ ने ये कहा है कि भारत अच्छा काम कर रहा है, और जो कि गर्व की बात है ही है। तो एफएटीएफ बेसिकली, एफएटीएफ की बात हर कोई मानता भी है। द एफएटीएफ मॉनिटर्स कंट्रीज टू इंश्योर दे इम्प्लीमेंट एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स fully and effectively. The FATF mutually evaluations are in-depth countries reports that analyze the implementation and effectiveness of measures taken against the money laundering, terrorist and proliferation financing. तो एफएटीएफ आपका यही करता है। अभी हम लोग कहाँ पे, हम लोग रेगुलर फॉलोअप रैंकिंग पे हम हैं इस समय, ठीक है, जो कि ऊपर की रैंकिंग होती है, अच्छी रैंकिंग है एफएटीएफ वाली। मगर एफएटीएफ ने यही कहा है कि भैया अब आप लोग अरेस्ट तो कर लेते हो, मगर एक काम करो ना, अंतिम कंक्लूजन में तो करिए, आप लोग को जेल में डालिए, उनके खिलाफ सज़ा तय करिए जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। फिलहाल जितने लोग मनी लॉन्ड्रिंग में अरेस्ट करे गए थे भारत में, बड़े नेता विशेषकर, वो बाहर आ चुके हैं, क्योंकि कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाई गवर्नमेंट। द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स came out with a mutual evaluation report for India on Thursday. While India gained comfort from being placed in the regular follow-up category, the FATF flagged certain areas for improvement, the need to be strengthened the prosecution in money laundering and terror financing. तो इसमें यही बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ समापन की ओर चलते हुए आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं, वो हम वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार जाकर ज़रूर विज़िट करिएगा, और कल फिर मिलिएगा नई वीडियो में। धन्यवाद।